Hello students, myself Rakesh Misra. In this video session, I will describe you how to write the floral formula for the flowering plants. This is all about matter of class 11. Many students complain that the floral formula is very hard because of in syllabus and in different kinds of books. The way to write the floral formula is very critical and very complicated. In this video session, I will describe you the very easy way to write floral formula, which is very important to understand the concepts of different kinds of family, because just after the floral formula and floral diagram there is the different kinds of family. In higher classes many students are confused how to write the floral formula. In lower classes up to class 11th students are totally confused and totally get frustrated even for the floral formula. Actually overall floral formula are the systematic way to write the symbolic form of different floral parts. The systematic way to write the different form of floral parts is known as floral formula. If you have an idea of floral formula for a particular family, then you can categorize the all floral characteristics in the single line. But if you are having the statements of a single flower of a single family, then the statement may be 5 to 10 lines. In the 5 to 10 lines, if you have ability to write the floral formula or convert the statement into floral formula, then it is very easy to write the floral formula and make a complicated sentence to a very simple formula, and also your understanding become very easy. In this video session, I will describe you the way to write floral formula for universal flower. Universal flower means all kinds of flower has a symbol, has a single type of characteristic symbol, and that symbol are similar for androecium, gynoecium, sepal petals are common. That is symbol for calyx is K, that is universal. Symbol for corolla, that is C, that is universal. So by taking universal symbol, I will describe you what are the common things among all kinds of family, among all kinds of floral parts in case of floral formula. In previous video lecture, I have described you the semi-technical description part 1, part 2, part 3, that is in form of volume 1, volume 2, volume 3. With the help of different kinds of volume, your concept regarding the symbolic form of different floral parts is clear. If you are in doubt regarding the symbolic form of any kinds of floral parts, immediately contact with the comment box regarding the each kinds of description, regarding the each kinds of confusion. And also, there is a suggestion for you. Revise yourself with the help of volume 1, 2, 3 in order to clear your concept regarding the semi-technical description. Now back to the floral formula. What is floral formula? Floral formula are systematic arrangement of various floral parts in their symbolic form. So how can we define the floral formula? The systematic arrangement of various floral parts in their symbolic form. Floral parts may be sepal, petal, calyx, corolla, androecium, gynoecium, bracts, bracteoles. How do they arrange in the systematic manner? There is need to write the floral formula. There is need to understand the concepts and their place in floral formula. Actually अगर floral formula आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किसको पहले लिखेंगे, जिस ऑर्डर में फ्लावर ग्रो करता है. फ्लावर में सबसे पहले ब्रैक्ट्स रहता है तो BR पहले लिखेंगे, उसके बाद ब्रैक्टियोल रहता है तो BRL अगर अवेलेबल है तो, अगर नहीं अवेलेबल है तो EBRL. ठीक है, उस बेस पे उस स्टाइल में लिखते हैं. लेकिन क्या छूट जाता है, जेंडर कहाँ पे लिखा जाएगा, उसका सिमेट्री कहाँ पे लिखा जाएगा, इसका एक टेक्निकल प्लेस है. उस प्लेस को पहले मैं बता दे रहा हूँ कि पहले तो आप कॉमन सा प्लेस जान लीजिए कि एग्जैक्ट प्लेस पे कहाँ पे चीजों को हम पुट करेंगे. ठीक है, आपको पता है कि सिमेट्रिकल के लिए जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस आपको सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में आपको बताया गया था. कैलिक्स और करोला का सिंबल क्या होता है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम का सिंबल क्या होता है, जेंडर में मेल और फीमेल का सिंबल क्या होता है, ये सब सारा चीज आपको सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वॉल्यूम 1, 2, 3 में मिल गया होगा. ठीक है,
इसमें सिर्फ यही जानेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए अगर फ्लोरल फार्मूला लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो पहले तो प्लेस जान लें हम कि कौन से प्लेस पे कौन सा पार्ट आएगा, फ्लोरल का पार्ट, वो हम कौन सा सिंबल लिखा जाएगा। क्योंकि अगर आप एक कंप्लीट फ्लावर की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें पेटल्स भी होंगे, सेपल्स भी होंगे, वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब जेंडर भी उसका कुछ न कुछ होगा, ठीक है। एंड्रोसियम भी होगा, गाइनोसियम भी होगा, ब्रैक्ट्स भी हो सकता है, ब्रैक्टियोल भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, सिमेट्री भी फ्लावर का, माने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप उसको लिखेंगे कॉपी में और सिंबॉलिक फॉर्म में, वही फ्लोरल फार्मूला। तो कुछ चीजों को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पहली बात तो प्लेस ऑफ सिंबल, प्लेस ऑफ सिंबल, सिंबल्स का हम प्लेस, सिंबल्स में मैंने बताया सिंबल्स में किस चीज के सिंबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लावर्स के सभी सिंबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में फ्लावर और फ्लोरल पार्ट्स उसके सिंबल के बारे में बताया जाता है। 8 सिंबल्स को आप कैटेगराइज करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 डब्बा आपको बनाना। डब्बा बार बार नहीं बनाना है, सिंबल का प्लेस है। एक बार सिंबल याद हो जाए तो किस जगह पे कौन सा प्लेस है वहां पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। कौन सा सिंबल किस प्लेस पे फिक्स होगा वहां पे हम सेट कर देंगे। अब ये सिंबल कौन से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुल 8 फ्लोरल पार्ट्स का इंफॉर्मेशन ही लिखना है हमको। एक कंप्लीट फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए कुल 8 जो है क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऐसे कर देने हैं, ठीक है। अब पहले प्लेस पे क्या होगा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इस पे यहाँ पे आपको लिखने ब्रैक्ट का इंफॉर्मेशन। प्लांट्स में अगर ब्रैक्ट्स है तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपको ब्रैक्टियोल का इंफॉर्मेशन लिख देना है, ब्रैक्टियोल का। यहाँ पे उसकी सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, क्या है, सिमेट्री दे देना है। यहाँ पे उसके सेक्स का इंफॉर्मेशन दे देना है, जेंडर का इंफॉर्मेशन दे देना है, वो मेल है कि फीमेल। यहाँ पे कैलिक्स का इंफॉर्मेशन देना है, यानी कि के का इंफॉर्मेशन देना है, कितना है, 5 है, 7 है, एपीपेटलस है, गैमो है या पॉली है, जो भी है जैसे भी है उसको लिख देना है। कोरोला का इंफॉर्मेशन देना है, सी, ठीक है। यानी पॉलीपेटलस है, गैमोपेटलस है, जैसे भी है, नंबर कितने हैं, ठीक है, वो सब लिख देने हैं। एंड्रोसियम का इंफॉर्मेशन देना है, एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम पता है ए, ठीक है। पॉलीएंड्रस है, सिलेंड्रस है, नंबर के हिसाब से उसको ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। गाइनोसियम, गाइनोसियम में जी का इंफॉर्मेशन लिख देने, ठीक है। अब ये चीज आपको, जैसे आपको पता है कि ब्रैक्ट्स का क्या होता है, या तो ब्रैक्ट्स होगा या फिर ब्रैक्ट्स नहीं होगा। ब्रैक्ट्स या तो होगा या तो ब्रैक्ट्स नहीं होगा। ब्रैक्ट्स अगर होगा तो क्या लिख देंगे, बी आर, और ब्रैक्ट्स नहीं होगा तो पहले वाले कंडीशन पे ई बी आर लिखना पड़ेगा। ब्रैक्टियोल बी आर एल, बी आर एल, ब्रैक्टियोल अगर है तो बी आर एल लिखेंगे, ब्रैक्टियोल नहीं है तो ई बी आर एल लिखेंगे, ठीक है। सिमेट्री में आपको या तो एक्टिनोमॉर्फिक लिखना पड़ेगा या जाइगोमॉर्फिक लिखना पड़ेगा या फिर एसिमेट्रिकल लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्स में, जेंडर में या तो मेल लिखना पड़ेगा या फिर फीमेल लिखना पड़ेगा। अगर स्टेमिनेट है तो मेल लिखना पड़ेगा, पिस्टिलेट है तो फीमेल लिखना पड़ेगा, जेंडर, ठीक है। वहीं से आप रिकॉग्नाइज कर देंगे। फ्लावर बताएगा नहीं कि हम मेल है फीमेल है, फ्लावर देख के आप बता देंगे कि उसका जेंडर क्या है। कैलिक्स कितना है, कैलिक्स 5 है, फ्री है, फ्यूज है, कैलिक्स फ्री है, जैसे भी है उसको लिख देना है, ठीक है। जरूरी 5 है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। कोरोला सी, सेम कंडीशन है, ये 5 हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, या 5 हो सकता है, फ्री हो सकता है, 4 हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, 4 हो सकता है, फ्री हो सकता है। एपीपेटलस है, यानी कि एंथर्स के साथ, एंड्रोसियम के साथ फ्यूज है तो वहां पे एरो इस साइड में लग जाएगा, ठीक है। अगर फ्यूज है तो इस साइड में एरो लगा देंगे, अगर नहीं फ्यूज है तो नहीं लगाएंगे। एंड्रोसियम का वही कहानी है, एंड्रोसियम 5-7 जो भी है जैसे भी है उसको लिख देंगे। बस ये जो 8 बॉक्स है इसको याद रखना है और प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है कि कौन से प्लेस पे। जैसे अगर किसी को याद है अरे ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, चलो पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल ऐसे होता है, बताया गया था। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल कुछ लोग पहले तो बाइसेक्सुअल लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे सिमेट्री लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे कोरोला लिख देंगे, एंड्रोसियम, पता चला बाद में दिक्कत आएगी। तो ये सिस्टमैटिक ऑर्डर है। पहले आपको ब्रैक्ट का इंफॉर्मेशन देना है, फिर ब्रैक्टियोल का इंफॉर्मेशन देना है, फिर उसकी सिमेट्री के इंफॉर्मेशन देने हैं, फिर उसके जेंडर का इंफॉर्मेशन देना है,
फिर उसके कैलिक्स का इंफॉर्मेशन देना है, उसके बाद कोरोला का इंफॉर्मेशन देना है, फिर एंड्रोसियम का और तब गाइनोसियम का। नोट कर लीजिए, कुल 8 डब्बे हैं, 8 बॉक्स है। कौन कौन? पहला ब्रैक्ट्स, दूसरा ब्रैक्टियोल, तीसरा उसकी सिमेट्री, चौथा उसका जेंडर यानी सेक्स, पांचवा उसका कैलिक्स, छठवां उसका करोला, सातवां उसका एंड्रोसियम और आठवां उसका क्या हो जाएगा? गाइनोसियम का। अब कुछ स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझा देते हैं कि फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं। पहले तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा और स्टेटमेंट एक साइड में लिख देंगे और एक बार हम फ्लोरल फार्मूला जनरेट करके आपको बता दे रहे हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो डाउट वो क्लियर हो जाए। एक बार आप स्टेटमेंट्स के थ्रू फॉर्मूला बनाना सीख लिए, एक बार अगर आपके पास स्टेटमेंट है और फॉर्मूला बनाना सीख लिए तो आप जो है बार बार मन करेगा सर स्टेटमेंट दीजिए, स्टेटमेंट हमको दीजिए, मैं बार बार वही चीज बनाऊंगा। तो आप पहले तो फ्लोरल फार्मूला स्टेटमेंट के थ्रू बनाना सीख लीजिए। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर दे ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखना है, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट के बेस पे हम इसका एक कंप्लीट फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे। स्टेटमेंट के बेस पे फ्लोरल फार्मूला लिखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि क्या एडवांटेज है फ्लोरल फार्मूला ने शॉर्ट टिक के, ठीक है। तो आते हैं पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ब्रैक्टेड, ब्रैक्टियोलेट, ठीक है। ब्रैक्टियोल भी है, ब्रैक्ट्स भी है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। कैलिक्स 5 पॉलीसेपलस, कोरोला 5 गैमोपेटलस, एंथर 5 फ्री एपिपेटलस, ओवरी बाइकार्पेलिस, सिंकार्पस सुपीरियर। इससे ज्यादा हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देना। इसमें किस चीज का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है? इसमें आपको जेंडर का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास दिमाग है तो जेंडर का इंफॉर्मेशन ले लिए होंगे। कैसे ले लिए होंगे भाई? अब देखिए यहाँ पे ओवरी भी है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और एंथर भी है यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, ठीक है। ये एंथर है और ये आपका ओवरी है। मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी कि वो बाइसेक्सुअल है, तो जेंडर का इंफॉर्मेशन मिल गया, सेक्स का इंफॉर्मेशन मिल गया। अब आते हैं थोड़ा इसका फ्लोरल फार्मूला हम बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसका इंफॉर्मेशन देना है? ब्रैक्ट्स का। लिखा तो एक्टिनोमॉर्फी, लेकिन सबसे पहले किसका इंफॉर्मेशन देना है? ब्रैक्ट्स का। तो यहाँ पे लिख दिया बी आर, कोमा वगैरह नहीं लगानी है, बस ऐसे ही लिख देना शॉर्ट में बी आर। उसके बाद क्या है? ब्रैक्टियोल का इंफॉर्मेशन देना है। तो अगर नहीं दिया है तो EBRL नहीं लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, ठीक। अगर ब्रैक्ट लिखा है, ब्रैक्ट अब्सेंट, तो लिख देना EBR। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट अब्सेंट को लिखा ही नहीं, स्टेटमेंट दिया ही नहीं, तो उसके बारे में लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो 7 इंफॉर्मेशन देना, 7 का इंफॉर्मेशन देना है, ये आपको ध्यान में रखना। ब्रैक्टियोलेट अगर दिया है फ्लावर में तो BRL लिखेंगे और ब्रैक्टियोल अब्सेंट लिखा है तो EBRL लिखेंगे। अदरवाइज आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेने का, आपको 7 ही इंफॉर्मेशन लिखने हैं। तो ये क्या है? BR। इसके बाद ब्रैक्टियोलेट तो क्या हो जाएगा? BRL। इसके बाद किसका इंफॉर्मेशन देना था? इसके बाद देना था उसकी सिमेट्री का। सिमेट्री क्या दिया है? एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का जो फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है, वो ये होता है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। अब इसके बाद किसका इंफॉर्मेशन देना है? जेंडर का। भाई जेंडर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हालांकि यहाँ पे आपको दिमाग है तो आप जानते होंगे कि एंथर ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है और ओवरी किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो यानी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों है तो बाइसेक्सुअल है, तो लो जी बाइसेक्सुअल हो गया, ठीक है। अब क्या इंफॉर्मेशन देना है? अब कैलिक्स का और कोरोला का इंफॉर्मेशन देना है। इसके बाद एंड्रोसियम और गाइनोसियम का देना है। तो कैलिक्स का इंफॉर्मेशन हम सेपल से ले लेंगे। सेपल्स किसका दिया है? यहाँ पे देखो कैलिक्स का इंफॉर्मेशन सेपल 5 पॉलीसेपलस। सेपल 5 पॉलीसेपलस, सेपल के लिए क्या होता है? के। तो यहाँ पे लिखेंगे के। पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस का कंडीशन क्या हो जाएगा? कि 5 और इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको ब्रैकेट में करोगे तो ये गैमोसेपलस हो जाएगा। इसके बाद पेटल के इंफॉर्मेशन पे आते हैं। पेटल क्या दिया है? पेटल 5 गैमोपेटलस, यानी पेटल के लिए क्या होता है? C और 5 लिख देंगे, गैमोपेटलस ब्रैकेट में कर देंगे। इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद एंथर का इंफॉर्मेशन देना है। तो एंथर के लिए क्या होता है? A होता है। और एंथर के इंफॉर्मेशन के बाद आपको क्या करना है? उसके नंबर को चेक करना कितना दिया है। एंथर 5 दिया है, फ्री। एंथर 5 देकर के फ्री दे दिया है, तो एंथर 5 दे दिया है और इसको ब्रैकेट में नहीं करना है, लेकिन उसके आगे एक कंडीशन दे दिया है क्या? एपी पेटलस, यानी कि पेटल के साथ वो फ्यूज है। तो क्या यहाँ से एक एरो निकाल कर पेटल की साइड में कर देंगे, तो ये हो जाएगा एपी पेटलस कंडीशन, ठीक है। अब गाइनोसियम के बारे में लेना है। गाइनोसियम का जी होता है ओवरी। अब ये दे दिया है बाइकार्पेलिरी, तो बाई मीन्स होता है 2, ठीक है। सिंकार्पस, तो इसको आप फ्यूज कर दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए। सुपीरियर यानी इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए।
तो हमारा क्या इंफॉर्मेशन मिल गया, हमारा अभी एक लाइन में या आधे लाइन में एक फ्लोरल फार्मूला मिल गया, जिसको अगर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये अगर कॉपी में लिख रहे हो तो कम से कम 2-3 लाइन ले लेगा, स्टेटमेंट आपका 2-3 लाइन ले लेगा, कम से कम 2-3 मिनट ले लेगा। और इस फ्लोरल फार्मूला लिखोगे तो हम जानते हैं कि आप 20 सेकंड के अंदर अगर बड़े टैलेंटेड है तो 10 सेकंड नहीं तो 20 सेकंड में आप ये फ्लोरल फार्मूला लिख देंगे। तो है ना कमाल की बात। यहाँ पे आपको यही जानना है कि फ्लोरल फार्मूला के एडवांटेज क्या है। फ्लोरल फार्मूला में चीजें चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, फ्लोरल फार्मूला बदलता रहता है। जैसे अब यहाँ पे अगर एक्टिनोमॉर्फिक की जगह जाइगोमॉर्फिक कर दिया जाए, कुछ चेंज मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक की जगह हम जाइगोमॉर्फिक कर दें, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। ब्रैक्टियोल की जगह पे यहाँ पे ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल की जगह पे कुछ चीजों को मैं चेंज कर और लिख दूं यहाँ पे ब्रैक्ट एब्सेंट, और ब्रैक्टियोल का इंफॉर्मेशन ही मैंने दूं। कैलिक्स 5 लिखूं, पॉली की जगह गैमो लिख दूं, पॉली की जगह क्या लिख दूं, गैमो, पॉली की जगह क्या लिख दूं, गैमो, गैमो से प्लस लिख दूं, ठीक है। और कोरोला की जगह, कोरोला में 5 की जगह पॉली से प्लस लिख दूं, पॉली से प्लस लिख दूं। और एंथर 5 फ्री की जगह यहां पर फ्यूज लिख दूं, फ्यूज, फ्यूज, ठीक है। और एपी पेटलस जो कंडीशन है उसको एज यूजुअल रहने दे रहे हैं। ओवरी बाई कार्पिली की जगह पे लिख दे रहा हूं ओवरी ट्राई कार्पिली, ट्राई कार्पिली। सिंक कार्पस की जगह लिख दे रहा हूं एपो कार्पस, क्या लिख दे रहा हूं, एपो कार्पस, एपो कार्पस। सुपीरियर की जगह लिख दे रहा हूं इंफीरियर, इंफीरियर। और तब ये स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2। तो अब इस बेस पे जो फ्लोरल फार्मूला होगा, ये फ्लोरल फार्मूला बदल जाएगा। ये पहले वाले के लिए था और दूसरे वाले के लिए फ्लोरल फार्मूला देखो, स्टेटमेंट क्या हो गया, जाइगोमॉर्फिक, ब्रैक्ट एब्सेंट, ब्रैक्टियोल का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कैलिक्स 5 गैमो से प्लस, कोरोला 5 पॉलीपेटलस, ये पॉलीपेटलस होगा, यहाँ पे पॉलीपेटलस कर दीजिए, पॉलीपेटलस। एंथर 5 फ्यूज एपीपेटलस कंडीशन, ओवरी सुपीरियर, ओवरी क्या है, ट्राई कार्पिलरी, एपोकार्पस इंफीरियर। अब इस बेस पे हम इसका नया फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे। कैसे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ब्रैक्टियोल का इंफॉर्मेशन, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल का इंफॉर्मेशन लिखेंगे। देखो इसमें ब्रैक्ट का इंफॉर्मेशन तो है लेकिन ब्रैक्टियोल का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ब्रैक्ट का इंफॉर्मेशन क्या है, ब्रैक्ट एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे EBR। अब यहाँ पे आगे BRL यानी कि ब्रैक्टियोलेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि नहीं है, वो बताया ही नहीं गया। जैसे आपको पता है अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन है तो पूछेंगे, और किसी के बारे में जानते ही नहीं है तो क्या पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैक्टियोल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम लिखेंगे नहीं, प्रेजेंट एब्सेंट कुछ दिया रहता तो हम लिखते हैं। इसके बाद सीधे आपको क्या लिखना है, उसकी सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री दिया हुआ जाइगोमॉर्फिक, तो इसका जाइगोमॉर्फिक आप जानते हैं परसेंट होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जेंडर पता करना है, तो जेंडर में आप देखेंगे, चेक करेंगे, जेंडर वर्ड कहीं नहीं लिखा है, न सेक्स लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो सीधे आप चेक करेंगे हमारे स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल। तो जेंडर में आप देखिए एंथर भी है और ओवरी भी है, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल है। तो लो जी, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर का इंफॉर्मेशन दे दिया। अब आपको बस KCAG लिख देना है। अब K कितना और C कितना, G कितना, A क्या है, उस हिसाब से हम स्टेटमेंट से देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कैलिक्स 5 गैमो से प्लस, तो यहाँ पे कैलिक्स 5 गैमो से प्लस हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया है कोरोला 5 पॉलीपेटलस, तो कोरोला 5 क्या हो जाएगा, पॉलीपेटलस, ठीक है। पॉली मतलब ये फ्री कर दे रहे हैं, ठीक है, ये फ्री कर दे रहे हैं, ठीक, ये स्टेटमेंट है। इसके बाद आप क्या दिया हुआ है, एंथर 5 फ्यूज एपीपेटलस, एंथर 5 है, फ्यूज है, और इसको एपीपेटलस से कर दीजिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप है ओवरी ट्राई कार्पिलरी यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। एपोकार्पस इंफीरियर, तो ये क्या हो जाएगा, एपोकार्पस फ्री रख दे रहे हैं और ऊपर अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इंफीरियर हो जाएगा। तो ये आपका ये दूसरे तरह का स्टेटमेंट आ गया। टाइम उतना ही लगा लेकिन स्टेटमेंट आपको शॉर्ट हो गया। पूरा टाइम इसको लिखने में उतना ही लगेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला के बेस पे लिखेंगे तो ये कम टाइम लगेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।